लगभग 15 लाख बच्चे हर साल ग्रेजुएट होते हैं फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेजेस. ओनली 2% आर द स्टूडेंट्स हु गेट्स जॉब अबव 8 लाख पर एनम. जो डिग्री हम प्रोवाइड कर रहे हैं इट्स यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड, AICTE अप्रूव. बहुत सारी चीजें होती हैं जो गलत हो सकती हैं स्टार्टअप में, एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स फेल. All the people who are teaching at Boscoder School of Technology are practitioners. They are not just academicians. हम रैम को खोल के देखेंगे कि रैम के अंदर है क्या एक्चुअली, रेदर देन सिर्फ एक डायग्राम बनाना या सिर्फ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना. आवर कैंपस इज इनसाइड अ टेक पार्क इन बैंगलोर. हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ मनीष हैं. मनीष हैज वर्कड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर and as an AI researcher with multiple tech giants. Currently, he is working as a co-founder with Boscoder. So, if you are a student or an engineering or a person who wants to get into tech, और आपके दिमाग में confusion है regarding the tech industry, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, how to become placement ready, job ready, then आज की podcast आपके लिए काफी ज़्यादा helpful होने वाली है. So, without any further ado, let me call Manish on my channel. He'll give the introduction, he'll answer our doubts, and we'll ask as many questions as we can because we have someone from the industry right now. So, Manish, how are you doing? Hi Shivangi, thank you for having me, and I am doing great. How are you doing? All good, Manish, all good. So, Manish, I have given a brief introduction about you, but I would want you to tell us more about you so that we get to understand your profile better. So hi everyone, my name is Manish Garg. I am a 2016 graduate from IIT Dhanbad, and just after the college I got into Samsung. At Samsung I was working as a machine learning engineer, and I was working with the voice intelligence group of Samsung, where my work was primarily around converting voice into text. So whatever I am speaking, converting this voice into text is something that I was working on at Samsung. After Samsung I moved to a company called Essential. Essential was a multi-billion-dollar startup by Andy Rubin. Andy Rubin is the co-founder of Android. And I have worked very closely with Andy Rubin. And here we were building a operating system that can be controlled completely with voice. And after this, I moved to Hamburg in Germany, where I was working with a company called Curie. This was a relatively small startup, and I was leading the whole machine learning team at Curie. And after this, from the past 5 years, my background has been on education, and as a co-founder at Boscoder, we have been fixing the tech education in India. Okay. So, Manish, when you say fixing the tech education in India, I would like you to elaborate on that and tell us the problems that the tech education currently has. Yeah, so basically बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. अगर मैं लिस्ट डाउन करूँ कि इंजीनियरिंग एजुकेशन में दिक्कत कहाँ है, सबसे पहले मैं कुछ नंबर्स की बात कर लेता हूँ. लगभग 15 लाख बच्चे हर साल ग्रेजुएट होते हैं फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एंड आउट ऑफ दीज 15 लाख लेस देन 20% आर एबल टू गेट अ जॉब. इनमें से भी ओनली 2% आर द स्टूडेंट्स हु गेट्स जॉब अबव 8 लाख पर एनम. 80% ऑफ द पीपल आर नॉट इवन एम्प्लॉयबल. सो ये नंबर्स बहुत अच्छे नहीं है. And this is happening because our colleges are not doing what they should do. ये जो 4 साल होते हैं बच्चों के आफ्टर 12th are one of the most important years. इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा टाइम होता है स्टूडेंट्स के पास टू डू समथिंग, बट दे आर बीइंग वेस्टेड एट इंजीनियरिंग कॉलेजेस. अब प्रॉब्लम्स की बात करें तो 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं ना. पहला इज जो करिकुलम है दैट इज आउटडेटेड. जो चीज़ें आज से 15 से 20 साल पहले रेलेवेंट थी, वो चीज़ें आज भी पढ़ाई जा रही हैं. उनका कोई लेना देना नहीं है टू व्हाट द इंडस्ट्री डिमांड्स टुडे. इतनी तेजी से इंडस्ट्री में स्किल्स की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, बट आवर कॉलेजेस आर नॉट एबल टू अडेप्ट देयर करिकुलम बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री डिमांड्स. दूसरी प्रॉब्लम है फैकल्टी. जो फैकल्टी है दैट इज जो फैकल्टी पढ़ा रही है, दे आर नॉट प्रैक्टिशनर्स. They are not engineers, they are actually academicians. ठीक है, उन्होंने M.Tech की है, उन्होंने PhD की है, they are very good in research, but they have never worked in a real company, in a real tech job, or might not have written a single line of code in a production level system. These are the people who are teaching in engineering colleges. जैसे अगर मैं बात करूँ मेडिकल एजुकेशन की, if you want to become a surgeon,
तो आपको एक्चुअली में लेट्स से आप मणिपाल हॉस्पिटल में आपको सर्जन, आप गए हो पढ़ाई करने, तो आपको सर्जन सिखाएगा हाउ टू डू अ सर्जरी, रेदर देन समवन जिसने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, वो आपको नहीं सिखाएगा हाउ टू डू अ सर्जरी। बट अनफॉर्चुनेटली इंजीनियरिंग एजुकेशन में ऐसा ही होता आ रहा है अभी तक, एंड आई बिलीव कि दिस हैज़ टू चेंज, otherwise engineers that we are producing are not very high quality engineers. Yeah, kudos on that, Manish. You're actually, see, we know the problem, that's the first step. उसके बाद you're working on the solution, that's the next step. So एक एक करके समझते हैं. When you're saying कि काफी सारी problems exist करती हैं, especially starting from the curriculum part, I can totally relate. मैं भी, I come from a tier 3 college, so I can understand. हम 45-46 subjects पढ़ते हैं, hardly हम कुछ real life में implement करते हैं. So I want to understand कि हमने बॉस्कोडर में या बॉस्कोडर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में हमने किस तरीके से इन करिकुलम को फॉर्मुलेट किया है सो दैट इट इज मेकिंग द स्टूडेंट्स इंडस्ट्री रेडी। सो मैं करिकुलम के बारे में बताऊं उससे पहले लेट मी स्पीक अबाउट व्हाट बॉस्कोडर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इज। बॉस्कोडर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अ 4-year fully residential BTech degree program in based out of Bangalore. एट बॉस्कोडर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी हम 4 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। पहली चीज़ है करिकुलम विच यू आर स्पीकिंग अबाउट, दूसरी चीज़ है फैकल्टी, थर्ड थिंग इज द इन्वायरमेंट एंड द इकोसिस्टम दैट वी आर प्रोवाइडिंग, एंड फोर्थ थिंग इज द प्लेसमेंट्स और द आउटकम्स। अब आप बात कर रहे हो अबाउट द करिकुलम, राइट, कि करिकुलम क्या है एंड हाउ वी आर स्ट्रक्चरिंग द 4 years. सो लेट मी स्पीक अबाउट द करिकुलम इन डिटेल। हमने जो करिकुलम बनाया, सबसे पहली चीज, द करिकुलम इज अ इंडस्ट्री अलाइंड करिकुलम. Whatever we are going to teach at Boscoder School of Technology is something that industry requires today and in the future. So 4 साल होते हैं बच्चों के पास बीटेक में। 4 साल की अगर बात करूं तो फर्स्ट ईयर विल बी अबाउट बिल्डिंग द कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स। अच्छा, एक क्वेश्चन सेकंड ईयर, मनीष, एक क्वेश्चन, तो स्पेशलाइजेशंस भी हम कवर कर लेते हैं कि हम कौन कौन से स्पेशलाइजेशन में एंटर कर सकते हैं। इज इट जस्ट सीएससी दैट वी आर टारगेटिंग और अदर स्पेशलाइजेशंस एज वेल? no, it's only a college for computer science. Okay, understood. Yeah, please go ahead. Yeah. So let me talk about the curriculum. So अगर मैं करिकुलम की बात करूं तो 4 साल होते हैं बच्चों के पास इन बीटेक। सो ईयर बाय ईयर चलते हैं। फर्स्ट ईयर विल बी अबाउट बिल्डिंग द फंडामेंटल्स, second year will be about going deeper into these fundamentals and actually knowing how real systems work. Third year will be about choosing a specialization in computer science itself, and final year will be a paid internship. Okay. अब मैं आता हूँ एक एक करके, मैं चारों साल के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। Sure. फर्स्ट ईयर जब मैं कह रहा हूँ कि वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग फंडामेंटल्स, तो हम 4 स्किल्स पे मोस्टली फोकस करेंगे फर्स्ट ईयर में। पहला स्किल, फर्स्ट स्किल इज your coding skills, second is your data structures and algorithms, third is web development, and fourth is starting of data science or data analysis. Okay. जो भी हम करेंगे यहाँ पे, everything is going to be theory plus practical. It's not like कि सिर्फ थ्योरी पढ़ा दी मैंने। जैसे कि आप पहले साल में सीखोगे हाउ टू बिल्ड अ ई-कॉमर्स वेबसाइट। ई-कॉमर्स वेबसाइट जब आप बनाओगे, आप Amazon जैसा प्लेटफॉर्म बनाओगे, तो आप एक्चुअली वो प्लेटफॉर्म बनाते हुए सीखोगे हाउ HTML वर्क, हाउ CSS वर्क, हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स, रेदर देन कि आप वो सीखोगे एंड देन ये बनाओगे। जब आप डेटा एनालिसिस की बात करोगे तो आप एक्चुअली एनालाइज करोगे वेदर अ ईमेल इज अ स्पैम ईमेल और नॉट अ स्पैम ईमेल। सो आप ये सारे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करके यू विल लर्न अबाउट दीज थिंग्स। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट ईयर। अब सेकेंड ईयर में हमने जो फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल्स किए हैं, हम इसी को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे एंड वी विल गो इनटू द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, हम DBMS पढ़ेंगे, हम कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि जो वेबसाइट आपने फर्स्ट ईयर में बनाई थी, इफ़ यू वांट टू स्केल इट टू मिलियंस ऑफ यूजर्स, तो आप वो स्केल कैसे करोगे। हम ये देखेंगे कि जो आपने डेटा एनालिसिस किया था टू फाइंड आउट स्पैम वर्सेस नॉन स्पैम ईमेल, अगर उसे गूगल के जीमेल में जाना हो तो व्हाट आर द कॉम्प्लेक्सिटीज दैट विल बी देयर इफ इट हैज टू गो इनटू अ प्रोडक्शन लेवल सिस्टम। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करेंगे। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको मदरबोर्ड सिर्फ बना के दिखाऊंगा या रैम आप सिर्फ बना के देखोगे। एक्चुअली हम एक लैपटॉप लेंगे, हम उसको खोलेंगे,
हम उसका मदरबोर्ड अंदर से निकाल के देखेंगे कि मदरबोर्ड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या एलिमेंट्स है। हम रैम को खोल के देखेंगे कि रैम के अंदर है क्या एक्चुअली में, रेदर देन सिर्फ एक डायग्राम बनाना या सिर्फ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना। तो ये होगा सेकेंड ईयर में, वेयर यू विल गेट यू विल गो डीपर इनटू कंप्यूटर साइंस। अब सेकेंड ईयर के एंड तक यू विल गेट टू नो कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। सो थर्ड ईयर विल बी अबाउट स्पेशलाइजेशन। हमारे पास 3 स्पेशलाइजेशन है। नंबर 1 इज सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन, सेकेंड इज ML एंड AI स्पेशलाइजेशन, एंड थर्ड इज ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज करोगे, where you will learn about how to build large scale systems at production level. How will you secure these systems कि बहुत सारे हैकर्स अटैक कर सकते हैं एक पब्लिक सिस्टम के ऊपर, तो हाउ विल यू सिक्योर दिस सिस्टम। एक्चुअली डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, यू विल लर्न अबाउट डेवऑप्स हियर, यू विल लर्न अबाउट लो लेवल डिजाइन एंड हाई लेवल डिजाइन। एक्चुअली में आर्किटेक्चर लेवल पे स्केल कैसे होती हैं चीजें। अगर आप मशीन लर्निंग और AI स्पेशलाइजेशन पे जाते हो तो you will learn about everything about machine learning here. You will learn about how machine learning works in systems like ChatGPT. आप सीखोगे LLMs कैसे काम करते हैं, Gen AI कैसे काम करता है, ये जो सिस्टम्स हैं इनके एप्लीकेशंस कैसे बिल्ड हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इन मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन। और अगर आप ब्लॉकचेन साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन लेते हो तो आप सीखोगे वेब 3.0 कैसे काम कर सकता है, क्रिप्टो की क्या क्या चीज़ें हैं, क्रिप्टो कैसे काम करता है, हाउ टू सिक्योर क्रिप्टो करेंसीज एंड ऑल दीज थिंग्स। सो आप ये चीज़ें थर्ड ईयर में सीखते हो, एंड बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर यू आर फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू यू आर एट अ लेवल ऑफ अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और अ सीनियर मशीन लर्निंग इंजीनियर हु हैज़ अराउंड 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। और एंड में आप फाइनल ईयर में क्या करोगे, यू विल डू अ मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप। यहाँ पे 3 ट्रैक्स है जो आप चूज कर सकते हो। पहला है आप एक्चुअली में पेड इंटर्नशिप कर सकते हो, सेकेंड इज आप कोई कंपनी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट कर सकते हो इनसाइड द कैंपस, एंड थर्ड इज अगर आपको खुद का कुछ स्टार्ट करना है, इफ यू वांट टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर या आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो आप उस पर काम कर सकते हो इन द फाइनल ईयर। तो आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनल ईयर आपने सारी स्किल्स भी गैदर कर ली, प्रैक्टिकल भी कर लिया, एंड उसके बाद आपने 1 साल का इंडस्ट्री एक्सपोजर भी ले लिया। तो बाय द एंड ऑफ दीज 4 years यू विल बी much better than a normal engineering graduate. So this is how the curriculum is designed at Boscoder School of Technology. Got it. So Manish, curriculum wise ऐसे तो it looks amazing and very interesting, but I want to understand कई बारी क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि एजुकेटर कैसा है, कि उसके बाद हमें समझ आता है कि हम किस तरीके से चीज़ें सीख रहे हैं। आर वी जस्ट अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी और actually building stuff which we are doing? So I want to understand more about the faculty. Right. So जैसा as I said in the starting, right, कि एक प्रॉब्लम तो करिकुलम है, दूसरा प्रॉब्लम है फैकल्टी। All the people who are teaching at Boscoder School of Technology are practitioners. They are not just academicians. जितनी भी फैकल्टी है हमारी, they all have worked in good प्रोडक्ट कंपनीज, जैसे किसी ने गूगल में काम किया हो, माइक्रोसॉफ्ट में किया हो, अमेजोन में किया हो। टू गिव यू अ फ्यू एग्जांपल, आई माई सेल्फ इज गोइंग टू टेक डेटा रिलेटेड क्लासेस लाइक डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग रिलेटेड क्लासेस। In machine learning specialization also I am going to take a few subjects. So machine learning related classes is something that I am going to take, who has around 7-8 years of experience working on machine learning systems. इसके बाद अगर मैं बात करूं, the other co-founder Rajat, he has worked at Microsoft for 4 years. He is going to take classes around coding, around data structures and algorithms, around high level design, around low level design. Another instructor we have is Simran Bindra. She is a data engineer at Google. She is going to take classes around data analysis. She is going to take classes around data analysis and data science, machine learning systems कैसे काम करते हैं on a scale of Google. So all these things will be taught to you by real practitioners who have experienced these technologies in their real life rather than just academicians.
got it. This is very amazing. Other than this, कई बारी क्या होता है मनीष, when a student who is envisioning a college life, तो बहुत ऐसा पिक्चर होता है कि ऐसा होगा कॉलेज लाइफ में ये सारी एक्टिविटीज होंगी। चलो पढ़ाई इज ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ इट, बट कैंपस लाइफ भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। कैन यू टेल मी अबाउट द कैंपस लाइफ ऑफ बीएसटी? Yeah, so as you said, campus life is equally important. राइट। So this was one of our prime objective, that while a student is studying, हम्म। उसको इंजीनियरिंग में कैंपस लाइफ भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. हाँ। So our campus is inside a tech park in Bangalore. It's a 100-acre tech park. वाओ। So you will be surrounded by tech companies all around you. इमेजिन करो कि आपको लंच करना है, आप लंच करने के लिए कैफेटेरिया गए हो, एंड आपके साइड में जो आपके साथ लंच कर रहा है, ही इज ऑलरेडी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और समवन हु इज वर्किंग इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. सो इस तरह का टेक का इन्वायरमेंट होगा. इसके अलावा सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी कैंपस के अंदर अवेलेबल है, बी इट एनी स्पोर्ट्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, एनी टाइप ऑफ स्पोर्ट दैट यू कैन थिंक ऑफ, वी हैव फैसिलिटीज फॉर एवरीथिंग. कॉलेज में बच्चों के लिए हर तरह के क्लब्स अवेलेबल हैं. मंडे टू फ्राइडे तो आपकी पढ़ाई होगी, लेकिन सैटरडे संडे में यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट क्लब्स. यू कैन जॉइन कोडिंग क्लब, यू कैन हैव जॉइन ड्रामा क्लब, सिंगिंग क्लब, डांस क्लब, और मे बी सम अदर काइंड ऑफ क्लब, वॉट एवर यू आर इंटरेस्टेड इन. राइट। सो ये सारी चीज़ें. इसके अलावा जो फेस्ट होते हैं, कल्चरल फेस्ट हो गए, टेक फेस्ट हो गए, ऑल दीज विल बी देयर इन द कॉलेज. सो इट्स अ फुल फ्लेज्ड कॉलेज based out of Bangalore inside a tech park with all the facilities that are there in a college, along with a rigorous curriculum that will help them upskill. It's important, Manish, because see, हमें at the end of the college life याद क्या क्या चीजें रहती हैं. These things, these events, fest, all of it make the college life memorable one. Plus एक student के holistic development के लिए भी these extracurricular activities play a very crucial role. So it's great कि the campus life is also going to be amazing for people. Now coming to the very Right. important part, which is the placements, because see इंसान पढ़ाई क्यों कर रहा है, एक अच्छी सी जॉब लग जाए. So want to understand कि placements पे हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके की कंपनीज आएंगी, किस तरीके के पैकेजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, all of that in detail. So अगर मैं बात करूं कि आउटकम्स क्या क्या है, प्लेसमेंट से पहले बात करते हैं. आफ्टर द कॉलेज व्हाट आउटकम्स कैन अ स्टूडेंट एक्सपेक्ट. सो मेजरली 3 आउटकम्स है दैट अ स्टूडेंट कैन एक्सपेक्ट आउट आफ्टर द कॉलेज. पहला है कि आई वांट टू गेट अ जॉब इन अ गुड कंपनी. सेकंड इज आई वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज ईदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. और थर्ड है कि आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस, आई वांट टू गो ऑन आई वांट टू डू माय ओन स्टार्टअप. एट बॉस्कोडर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी हम ये तीनों चीज ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, एंड वी हैव डिजाइंड आवर करिकुलम एंड एवरीथिंग एट बॉस्कोडर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, सो दैट ये तीनों चीजें ऑप्टिमाइज हो जाए, तीनों आउटकम ऑप्टिमाइज हो जाए. मोस्ट ऑफ द पीपल वांट्स टू गेट अ प्लेसमेंट. Right. अब प्लेसमेंट के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 इज दैट योर प्रोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग. सेकेंड इज you should have access to opportunities, and third is that you should be eligible for the job. अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं तो जैसा मैंने कहा कि एक कंपेयर करते हैं एक नॉर्मल कॉलेज के स्टूडेंट की प्रोफाइल एंड एक बॉस्कोडर के स्टूडेंट की प्रोफाइल. नॉर्मल कॉलेज के स्टूडेंट की प्रोफाइल पे एक डिग्री होगी विच इज अ बीटेक डिग्री. इन बॉस्कोडर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी अगेन डिग्री होगी विच इज अ बीटेक डिग्री. इसके बाद 3 से 4 सॉलिड प्रोजेक्ट्स होंगे जो उसने अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में बनाए होंगे. उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होगा, रियल वर्क एक्सपीरियंस होगा इन अ गुड कंपनी. सो कंपनीज आर मोर लाइकली टू शॉर्टलिस्ट दिस काइंड ऑफ अ प्रोफाइल रेदर देन the other profile, right, which has just a BTech degree. Right. So profile is sorted, your skills are sorted. Second is access to opportunities. आपकी बहुत अच्छी प्रोफाइल है बट कॉलेज में कोई कंपनी नहीं आ रही, तो you will not get placed. Right. Boscoder has 500 plus hiring partners, and we have placed 2200 plus learners in the past 4 years. Our alumni are working in all the tech companies, be it Google, Amazon, Microsoft,
Swiggy, Zomato, Zepto, Paytm, any name you can think of, people from Boscoder School of Technology are working in these companies. So you will have access to opportunities. And third is your eligibility. Eligibility के लिए क्या चाहिए? A BTech is required, right? So जो डिग्री हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इट्स अ UGC रिकॉग्नाइज्ड, AICTE अप्रूव्ड, NAC A+ कैटेगरी डिग्री, इट्स अ बीटेक डिग्री, राइट, विद ऑल दीज थिंग्स. सो ये तीनों चीज है, तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ प्लेसमेंट. अब मैं सेकंड चीज की बात करता हूँ, विच इज अबाउट हायर स्टडीज. हायर स्टडीज के लिए सिंपल है. अगर आपको इंडिया में करना है तो आप एमटेक करोगे या एमटेक प्लस पीएचडी करोगे. एब्रॉड करना है तो आप मास्टर्स करोगे, एमएस करोगे, या कोई एमबीए के लिए जाओगे. इन सब के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए. ओनली थिंग दैट यू नीड इज़ अ गुड प्रोफाइल, मतलब गुड एसओपी, एंड गुड एंड अ डिग्री दैट वी आर प्रोवाइडिंग अगेन इज अ बीटेक डिग्री. तो डिग्री है तो ये वाला पार्ट सॉर्टेड है. राइट. तीसरी चीज पे आते हैं. अगर मेरे को इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, इंटरप्रेन्योरशिप में अगेन तीन चीजें, मोस्टली दो चीजें या तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली चीज की अगर मैं बात करूं, दैट इज मेंटोरशिप. क्या होता है, स्टार्टअप्स फेल होते हैं बिकॉज उनका कई बार तो आइडिया ही गलत होता है, कई बार स्ट्रेटेजी गलत होती है, कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं जो गलत हो सकती हैं स्टार्टअप में, एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स फेल. एट बॉस्कोडर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आपको स्टार्टअप बिल्ड करना है, वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू इन बिल्डिंग दैट. हम आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे. वी आर गोइंग टू टेल यू कि ये आइडिया अच्छा है या नहीं है, ये आइडिया वायबल है या नहीं है, इसके लिए गुड इनफ मार्केट है कि नहीं है, आपकी गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी सही है कि नहीं है. इन सब के लिए वी आर गोइंग टू गाइड यू एंड प्रोवाइड मेंटोरशिप सो दैट यू टेक most of the decisions that you take early on are mostly correct. तो मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हम प्रोवाइड करेंगे. सेकंड चीज होती है, व्हाई डज मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स फेल. या लेट्स से मैं कॉलेज के बाद स्टार्टअप करना चाहता हूँ पर मैं कर ही नहीं पाता बिकॉज मेरे पास फंड्स ही नहीं होते. कॉलेज तक तो पेरेंट्स ने सब फीस, हॉस्टल फीस दे दी है, मेस फीस दे दी है, सब कुछ सॉर्टेड है 4 साल तक. पर 4 साल के बाद क्या, मेरे फाइनेंसेस मेरे को देखने हैं, मेरे को रहना है, रेंट पे करना है, सब कुछ करना है. तो बॉस्कोडर हैज क्रिएटेड अ 1 crore फंड which is going to be used to support these startups out of Boscoder School of Technology, जो यही करेगा to fund these people who wants to build something, right? Obviously ये approved होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर कोई will be eligible for this fund, but जो लोग approve, जिनके आइडियाज अप्रूव होंगे बाई अस, वी विल मेक श्योर कि अगले 6 महीने, कॉलेज के बाद 6 महीने या साल भर तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अपनी कंपनी पे काम करने में. दैट वी आर गोइंग टू मेक श्योर यूजिंग दिस फंड. और तीसरी चीज होती है कि एक्सेस टू आउटसाइड फंड. राइट. जो भी स्टार्टअप्स अच्छा करेंगे, वी विल मेक श्योर दैट वी कनेक्ट देम विद VCs, एंजल्स, एंड वी are able to help them to get to raise their next round of fund also. So this is how we are building this startup ecosystem also, where entrepreneurship is also going to be encouraged. So this is how we'll optimize these 3 outcomes after the graduation. Understood. So this is definitely going to be super helpful. But इससे related एक question ये है कि हम prepare कर देते हैं, हम exposure दे देते हैं और हम हार्ड स्किल्स प्रिपेयर करा देते हैं स्टूडेंट्स की, बट देन कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. वी ऑल नो कि 60% रोल हमारी सॉफ्ट स्किल्स का भी होता है. बच्चा कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं, उसको सारा एक्सेस है, सारा हैंड होल्डिंग हम करा दे रहे हैं, बट फिर भी क्या वो अपना प्रॉपर रेज्यूमे, प्रॉपर पोर्टफोलियो बना पा रहा है कि नहीं. सो आर वी डूइंग समथिंग फॉर दिस एज वेल, जिससे बच्चे का सॉफ्ट स्किल भी डेवलप हो एंड दे आर लाइक एबल टू बिकम लाइक फुल्ली रेडी. So yes, basically other than computer science related skills, soft skills equally important है, because इंडस्ट्री में काम करना है. सॉफ्ट स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है. जब आपको अपनी कंपनी में काम करना है या कहीं जॉब में भी काम करना है, यू शुड नो हाउ टू प्रायोरिटाइज योर टाइम, हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस ऑल्सो.
हम इन सब चीज़ों पे बेसिकली होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं बॉस्कोडर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी पे। अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग विद द सॉफ्ट स्किल्स, सबसे पहली चीज़ है कि इन ऑलमोस्ट एवरी सेमेस्टर वी हैव सॉफ्ट स्किल्स एज अ सब्जेक्ट, जिसमें हम बिजनेस कम्युनिकेशन, हाउ टू डिबेट, हाउ टू कम्युनिकेट, वी हैव सेपरेट केस स्टडीज क्लासेस, जिसमें क्या होगा कि एक बैच में लेट्स से 60 स्टूडेंट्स हैं, उनको 20-20 के 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। देयर विल बी अ इंस्ट्रक्टर और अ मॉडरेटर, जो इनमें से किसी को भी कहेगा कि लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक, एंड वो उस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे आपस में इन अ डिबेट फॉर्मेट, सो एनीवन कैन बी पिक्ड अप फ्रॉम देयर। इस टाइप की केस स्टडीज की क्लासेस होंगी, सो दैट योर कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स। इसके अलावा हाउ टू बिल्ड अ स्टार्टअप, इन सब के अराउंड भी क्लासेस होगी। हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस, हाउ टू रीड द P&L बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, इन सब के अराउंड भी सब्जेक्ट्स अलाइंड है। इन एवरी सेमेस्टर वी हैव एडेड अ सब्जेक्ट ऑन एक्सरसाइज एंड योगा ऑल्सो, वेयर आप क्या कर सकते हो बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ टू अलाइन योर, हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें उन सब्जेक्ट से आएगी। वी हैव फिजिकल योगा, मेंटल योगा, स्पिरिचुअल योगा, as well as other type of exercises and sports also as part of the curriculum. So we are focusing on holistic development. Other than skills, these are the things that we will focus on. ओके, सो प्रोग्राम को लेके मेरे पे दिमाग में 2-3 क्वेश्चंस और हैं, एंड उसके बाद मैं थोड़ा ये भी जानना चाहती हूँ कि जो जिस तरीके से एआई जॉब्स एंड ऑल को इम्पैक्ट कर रहा है, we'll discuss about that also at the end. बट थोड़ा मेरे को ना, अब program looks very good from outside. The things that are taught, the way students will be prepared for the industry, everything looks very good. But I want to understand कि इस program में enroll करने के लिए what should be the eligibility criteria of the students? Do they have to give any JEE exams or any specific particular exams? On what basis उनका selection होगा? So सबसे पहले एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी इज if you have either passed 12th already or you are going to pass 12th this year, Okay. then you are eligible for 2026 intake. इसके बाद अगर मैं बात करूं, second thing is we are not enrolling students through JEE or any existing exam. We have our own exam called BSAT. BSAT stands for Boscoder Scholastic Admission Test. Why we are focusing on this test rather than a JEE exam? Because we believe that computer science people doesn't really need physics or chemistry. There might be some components that are required, but they are not. JEE is completely focused on physics, chemistry, and maths, right? But we are not. We believe that only maths and logical aptitude is something that a student needs if they want to become a great software engineer. So our exam is going to have these two things only. 40 questions will be on logical aptitude, and 60 questions will be on mathematics. If you are able to get 35% marks in this test, you will be going to the next level, which is a personal interview with one of our instructors, where they are going to again focus on your mathematics skill, focus on your logical ability, and will check whether you are passionate enough about the technology or how are you thinking about your future. So this is what our eligibility and admission process is. If you crack this personal interview, then you will be getting a admission offer from Boscoder School of Technology. थोड़ा चीट कोड चाहिए मनीष, अगर कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है ये वाले एंट्रेंस के लिए, तो किस लेवल का एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करनी है उसको, एंड कहाँ से पढ़ सकता है वो? सो जैसा मैंने कहा, हम कोई लेवल नहीं चेक कर रहे. वी आर चेकिंग योर जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. लाइफ में क्या होता है ना, इट्स नॉट अबाउट कि मेरे को इस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है या नहीं. इट्स मोर अबाउट कि मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, क्या मैं उसका कोई सोल्यूशन सोच पा रहा हूँ उस इंस्टेंट पे. दैट इज व्हाट वी वांट टू चेक. हम जनरल चीजें चेक करते हैं. वी हैव अ guide on test preparation, which is available on our website. When you apply for BSAT, you will get that guide in which sample questions are there, what topics we are going to ask. All these things are there in detail. But in general,
level is not going to be very high. We are looking for smart people rather than people who can memorize. We are not looking for people who can memorize or can think about formulas or can memorize formulas. We are looking for people who can come up with the solution of something that they have never seen in their life before. Yeah, it's great to see that at least now in the industry, capability is prioritized rather than just the scores or the numbers that we get. It's great to see that. Right. अभी थोड़ा fee structure भी जानना है मुझे मनीष. Throughout the 4 years, what is the fee structure that's going to be there? So the fees for college is 4.5 lakhs per year. Financing options are available from all the major banks: ICICI Bank, SBI, HDFC Bank, Axis Bank. All these you can finance. You can get finance uh, from all these banks under the education loan. And we also believe that someone should not be denied education if they are really good. So if you perform well in BSAT exam and if you perform well in the interviews, we have scholarships from 10% up to 100% for the people who are really, really bright and very good. Nice. This is very interesting. I was about to ask कि क्या कोई बच्चा जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंट्रेंस में, क्या उसको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है? वो फ्री में पढ़ सकता है क्या? Yes, So they can get. yeah, we've got the answer. Nice. हाँ. So अभी Manish, since you are part of the industry with very very good experience, and people who are going into tech are very much concerned कि tech का जो future है वो किस तरीके से shape हो रहा है, किस तरीके से change हो रहा है, learning में क्या क्या differences आने वाले हैं, या hiring में किस तरीके के differences आने वाले हैं, क्या DSA relevant रहने वाला है, या AI का overall industry में क्या impact पड़ रहा है. So can you throw some light on that how exactly AI is shaping the tech world? So I think ये बहुत relevant question है and everyone keeps on asking कि AI से क्या होगा. So मेरे को लगता है in 2025 AI has just started and we are seeing in 2025 AI has just started and we have seen some early signs of industrial use of AI in the last year. Right. अब मेरे को लगता है this has started and over the next 5 years we are going to see AI coming into every aspect of our lives. Like how there is electricity, right? We don't even feel electricity is there, but it's everywhere. This is how AI is going to be integrated in our lives in over the next 5 to 10 years. And I truly believe that AI is really going to be there in every industry, and that's why number of jobs will also increase which are related to AI. So AI is a skill, AI robotics is a skill that everyone should focus on for as a next big thing, and we should be ready that we should have this skill as a software engineer if we want to really perform well over the next few years. तो बैलेंस कैसे करना होगा मनीष ट्रेडिशनल स्किल्स को जो कि हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते बिकॉज दैट ब्रिंग्स एंड बिल्ड्स आवर फाउंडेशन साथ साथ वी हैव टू लर्न द एआई ऑगमेंटेड स्किल्स एज वेल सो हाउ डू वी कीप अ बैलेंस ऑफ इट सो मेरे को क्या लगता है ना कि क्या होता है, एक तो हो गए फंडामेंटल्स. जैसे मेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, मेरे को पता होना चाहिए डीएसए कैसे होता है, कोड लिखा कैसे जाता है. तो ये हो गए फंडामेंटल्स. अगर ये ही नहीं है तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही नहीं हो, राइट? या आप अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो सकते. तो नंबर 1 थिंग इज दिस कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, विच इज आपको मशीन लर्निंग के बेसिक्स आने चाहिए, आपको क्लासिकल मशीन लर्निंग भी आनी चाहिए, आपको डीएसए के बेसिक्स आने चाहिए, आपको कोडिंग आनी चाहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिक आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए सिस्टम अंदर से कैसे काम कर रहे हैं. उसके बाद सेकंड चीज होती है कि जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आई शुड हैव दैट माइंडसेट कि मैं डेली अपने आप को अपस्किल कर सकूं इनटू दैट टेक्नोलॉजी. जैसे हो सकता है 4 साल पहले अगर हम किसी भी बड़ी कंपनी में देखो, उनका टेक स्टैक अलग ही होता है. गूगल के अंदर अपनी कोई लैंग्वेज चल रही है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अपनी कोई लैंग्वेज है, हो सकता है वो यूज ही ना कर रहे हो जो हम पाइथन जावा जिसकी हम बात करते हैं. किसी और कंपनी के अंदर कोई और लैंग्वेज है, उनके अंदर जो दे हैव देयर ओन लैंग्वेजेस, ओन टेक स्टैक, राइट? सो
इट्स नॉट मतलब यू शुड हैव द एबिलिटी टू लर्न एवरी डे. सो जो स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ कि मेरे फंडामेंटल्स क्लियर हो और मेरा माइंडसेट हो कि मैं रोज सीख के नई चीज़ें कर सकूं. आज एआई है, आज जेन एआई है, मैं जेन एआई सीख रहा हूँ. कल हो सकता है जेन एआई विद ट्रांसफॉर्मर्स आ जाए या कुछ और एडिशनल चीज़ आ जाए, मैं उसको भी एक हफ्ते में सीख के उसको इम्प्लीमेंट करने लग जाऊं. दैट शुड बी समथिंग दैट आई शुड हैव. टेक सेक्टर का यही तो थंब रूल है, यू शुड बी रेडी टू अडेप्ट every so technology is राइट, changing every second day. If we see it from a broader राइट, perspective, you should be ready to adapt and learn. Amazing, Manish. It was राइट. really really nice talking to you. I hope we are not missing out on anything. Is there any last minute thoughts that you want to give or advice to the students who are listening to the podcast? I think last minute thoughts are this only, that dream big. If you dream big, you can really reach that dream that you are thinking of. Right. एंड अगर मैं कॉलेज की बात की हमने बहुत सारी, अगर कॉलेज के पर्सपेक्टिव में बताऊं तो कोई ख़राब कॉलेज मत चूज़ करना, ख़राब ब्रांच भी मत चूज़ करना, हाँ. क्योंकि उससे लाइफ ख़राब हो जाएगी. तो अच्छा ही कॉलेज चूज़ करना, देख के चूज़ करना कि what they are teaching, who are the people teaching there, and if you are getting some value out of what you are investing. ये सब चीज़ें देख के आई थिंक लाइफ के डिसीजंस लेने चाहिए. और दूसरा, ड्रीम करना कभी मत छोड़ना कि what I want to become. If you know that, then you will become that. Right. Two very important things which Manish pointed out. Ki see, your career is in your hand, so you have to decide that which direction you have to take, which path you have to take. Another thing, have faith in yourself because people like you and me are doing great in the industry, right? हम हमारी जैसे लोग ही जो बड़ा भी कर रहे हैं वो हमारे जैसे लोग ही हैं. So you can be the next CEO or you can be the next Manish, because Manish, your story is truly very very inspiring. So I would like to pass on the same to the audience as well. Guys, अगर आपको podcast अच्छी लगी है, so don't forget to hit the like button, share it to the people who might need it, and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell notification so that you get notified जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो. Thank you so much.